Okay. Okay. So today's topic is project management life cycle and project growth. Right. You might seen many life cycle, right? Like software development life cycle, right? There are multiple phases in software development life cycle: analysis, design, coding, testing, and deployment. Right. The same way, there is a one life cycle called project life cycle. Right. There are also four part of project life cycle. The parts are beginning of the project, planning and organizing the work of the project, performing the work of the project, and closing out the project. Let's just discuss this four part of project life cycle. Right. First part of our session is project life cycle. So let me just first consider the first step is the beginning of the project. What does it mean? Right. In the beginning of the project, the all project managers as well as the functional managers, what they are doing, they are analyzing the information as well as they are analyzing the resources whatever they required to complete their project. Right. First phase, beginning of the project, what we are doing here, or what project manager and function manager are doing here, they are identifying the requirement of the project, analyze the information of the project, identify the required resources they need to complete the project, and this much information has been stored to begin the project. Second part, in this beginning of the project, second thing what they are doing, they are just dividing their employees into project teams. Right. Also, they bifurcate their task to individual employees. Right. तो फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो पहले स्टेप में हम करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठे करते हैं. राइट. सेकेंडली वो क्या करते हैं, वो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उनको एक टीम में डेवलप करते हैं. राइट. मान लीजिए एनालिसिस के लिए 5 मेंबर की टीम डेवलप करो, डिजाइन के लिए 5 मेंबर की टीम, कोडिंग के लिए 5 मेंबर की टीम. ऐसे हम यहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर टीम डिवाइडेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज का. राइट. तो फर्स्ट स्टेप, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके. In the first step, right, later on we can identify there are the big risk. One of the most important risk is to complete the project. Right. जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तब हमारे पास कॉस्ट लो होती है, हमारे पास उतने टीम मेंबर अवेलेबल नहीं होते. राइट. तो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तब हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं, बजट के अंदर कंप्लीट होगा कि नहीं. ये जो रिस्क है, ये रिस्क बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है. तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पहला फेज, या तो हम कह सकते हैं पहला स्टेप, जो है बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. लेट्स मूव टू द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है. तो इन सेकेंड स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव ऑलरेडी अरेंज अवर group members, or we can say team members. Right. Now the role is to bifurcate the task. Right. Whatever the process is has been uh, whatever the process is has to required to develop the project, those processes have been divided into this project team. Right. जो भी प्रोजेक्ट टीम के अंदर जो भी मेंबर्स अवेलेबल है, वो सारे मेंबर्स को हम उनका टास्क बाइफरगेट करेंगे. जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करनी होगी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, वो प्रोसेसेस हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे. जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करेंगे. राइट. तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला, जो भी टीम मेंबर हमारे पास अवेलेबल है, जितने टीम मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, उन सारे टीम मेंबर को हम उनका रोल आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उनका टास्क बाइफरगेट करेंगे, और वी कैन से उनको अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हम देंगे, एज वेल एज हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. दूसरा काम,
जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं वो है टू ऑर्गेनाइज बजट एंड शेड्यूल, टू प्लान बजट एंड शेड्यूल। अब ये क्या है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज में हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास एक शेड्यूल होता है कि हमारा प्रोजेक्ट 50 डेज के अंदर हमें कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बजट है कोई भी, मान लीजिए 5000 रुपीज, राइट? तो इस सेकंड स्टेप के अंदर हमें प्लान क्या करना होगा कि जो भी हम प्रोसेसेस और वी कैन से रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हो, वो सारे रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस, राइट, वो अपने शेड्यूल के अंदर कंप्लीट हो। सेकेंड थिंग, जो भी कोई प्रोसेस हम काम कर रहे हो वो विद इन द कोस्ट हो, राइट? ज्यादा बजट हमारा हिल ना जाए, बजट के बाहर ना हम प्रोजेक्ट को ले जाए, राइट? तो ये सब प्लानिंग करने का काम हम इधर करेंगे, राइट? हम इधर दो काम कर रहे हैं। पहला काम, जितने भी टीम मेंबर्स हमारे अंदर अवेलेबल है, हमारे पास जितने भी टीम मेंबर अवेलेबल है, उन सारे टीम मेंबर्स को हम अपना उनका टास्क बाइफरगेट करेंगे, उसको अपना रोल आइडेंटिफाई कराएंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास बजट अवेलेबल है और वी कैन से जो भी हमारे पास शेड्यूल अवेलेबल है, उस शेड्यूल और उस बजट के अंदर हम कैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसकी हम प्लानिंग डेवलप करेंगे। तो यहां हम कह सकेंगे बट पार्टिसिपेंट एक्सटेंडेड लेफ्ट द मीटिंग इज मीटिंग। ओके, जो भी कोई लेफ्ट हो गया हो, राइट, वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे मुझे यहाँ दिखाई देगा, मैं उसको एडमिट कर दूंगा, राइट? ओके, सॉरी, मैं कहाँ था? एडमिट। हाँ, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं? टास्क बाइफर्केशन एज वेल एज जो भी हमारा बजट है, जो भी हमारा शेड्यूल अवेलेबल है, जिस शेड्यूल में हमें काम करना है, उसका हम मैनेजमेंट करेंगे और वी कैन से उसका हम प्लानिंग करेंगे, राइट? तो तीसरे फेज में हम जाते हैं या तीसरी प्रोसेस में जाते हैं जो है परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? ओके, द एक्चुअल डेवलपमेंट हैज बीन स्टार्ट हियर, right? The performing the work of the project, right? In the previous process, or we can say in the previous step, we have divided the task to the each and every team member. Now it is the role of team member to execute their task, right? Task तो हमने दे दिए आगे, right? कि आपको ये काम करने हैं, मगर अब वो क्या करेंगे? वो अपना टास्क एग्जीक्यूट करेंगे। एक्चुअल में जो हम हमारी भाषा में अगर बोले तो यहाँ हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन करना हम स्टार्ट करेंगे, राइट? मगर उस दरमियान फंक्शनल मैनेजर हो या तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो, यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फंक्शन हो या प्रोजेक्ट हो, क्योंकि हम जिस स्ट्रक्चर में काम करेंगे उस स्ट्रक्चर वाइज अथॉरिटी प्रोवाइड की होगी। अगर हम फंक्शनल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ के स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे तो फंक्शनल मैनेजर का रोल होगा, प्रोजेक्ट का इसके साथ काम करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होगा। रोल क्या होगा कि जो भी टास्क हमने दिया हुआ है टीम वर्क को, टीम मेंबर को, वो टास्क एक्चुअल में प्रॉपरली डेवलप हो रहा है या नहीं, उसका ध्यान हम यहाँ रखेंगे, राइट? कि जो भी कुछ काम दिया है वो काम विद इन शेड्यूल हो रहा है या नहीं, विद इन कॉस्ट हो रहा है या नहीं, टास्क एक्चुअल में जिस तरीके का दिया हुआ है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करने को दी गई है, वो प्रोसेस वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही या नहीं, ये सब हम इसमें इस स्टेप में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी अगेन हमें दो बात का ध्यान रखना होगा, दो दो टास्क का ध्यान रखना होगा। पहला टास्क क्या? वो होगा टीम मेंबर का, कि टीम मेंबर को करना क्या होगा कि जो भी टास्क उनको दिया गया होगा वो टास्क एक्चुअल में उसको उनको इधर एग्जीक्यूट करना होगा, राइट? एक्चुअल में कोडिंग डेवलप करनी होगी, प्रोग्रामिंग डेवलप करनी होगी। उस दरमियान प्रोजेक्ट मैनेजर या तो फिर फंक्शनल मैनेजर, उन दोनों में से किन्हीं को वो टास्क जो भी दिया है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, इन बजट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, इन शेड्यूल एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उस उसका प्लानिंग करना होगा, उसका कंट्रोलिंग करना होगा, राइट? तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? टास्क का एग्जीक्यूशन करेंगे एज वेल एज हम उसको मॉनिटर करेंगे। अगर हम एक एक वर्ड में अगर समझे तो उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं, राइट? तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। लास्ट स्टेप इज द क्लोजिंग आउट द प्रोजेक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। Closing out the project means
हम प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, वैसा नहीं। क्लोजिंग आउट द प्रोजेक्ट मीन्स जिस टीम मेंबर को जो कोई भी टास्क दिया गया है उसका कंप्लीशन यहाँ हो रहा है, राइट। मीन्स वॉट एवर वर्क हैव बीन गिवन टू द एम्प्लॉय, टू द टीम मेंबर्स, they submitted their work to respectively project manager or functional manager, right? After submitting, if the task or whatever the process they have executed is proper, then they have submitted the final project, right? जो भी काम हमने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को दिया हुआ है वो टीम मेंबर्स उस टास्क को प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट करेंगे। अगर वो टास्क प्रॉपर होगा, अगर प्रॉपरली डेवलप किया होगा, जो भी रिक्वायरमेंट अवेलेबल थी वो सारी उसमें हो, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी वो सारी उसमें हो, राइट। अगर ऐसा प्रॉपर सॉफ्टवेयर हमको वापस मिल रहा है तभी हम प्रोजेक्ट को सबमिट कराएंगे, किसके लिए? टेस्टिंग के लिए, राइट। तो इसमें दूसरा काम क्या होगा? इसमें सेकेंड स्टेप वॉज वी हैव टू टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। जो भी हमने फाइनल प्रोडक्ट डेवलप की है उसको हम यहाँ टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर वो एरर फ्री होगा, या तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, तभी हम वो प्रोडक्ट को और वी कैन से हम उस प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे, राइट। तो क्लोज करने के क्राइटेरिया कितने हैं? पहला क्राइटेरिया, जो भी टीम मेंबर्स है वो टीम मेंबर्स अपना टास्क और अपना काम सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट मेंबर्स को, अरे प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर वो टास्क और वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं। अगर वो प्रॉपर होगा तभी वो प्रोडक्ट और वो प्रोजेक्ट हम सबमिट करेंगे, किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के अंदर जो कोई एरर अवेलेबल ना हो और वी कैन से ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल, then we can officially say that the project is closed. But once the project is in their closing phase, the most important part is the signing out the project. ये हमें यहाँ कहीं दिखेगा नहीं, मगर ये बात हमें लिखनी होगी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट और प्रोजेक्ट क्लोज कब कहा जाएगा? जब उस प्रोजेक्ट के अंदर उसके स्टेक होल्डर्स एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर जब उस फाइनल प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को क्लोज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड स्टेक होल्डर्स की सिग्नेचर उस पर नहीं होते, सिग्नेचर मीन्स का प्रोडक्ट पे सिग्नेचर नहीं करेंगे मगर जो वो डॉक्यूमेंटेशन होगा उस पर साइन ना हो, तब तक हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कहेंगे, राइट। तो जैसे आपने पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखी थी, एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, XYZ, उसी तरह यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप काम होता है। किसमें? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। पहला काम क्या? बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में दो काम करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कॉस्ट शेड्यूल, सॉरी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और टीम का डिवाइडेशन करेंगे। सेकेंड होगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इधर हम इस स्टेप में हम क्या करेंगे? जो भी टीम हमारे पास अवेलेबल है उसको हम टास्क बाइफरगेट करेंगे, उनको अपना रोल आइडेंटिफाई कराएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? जो भी कॉस्ट एंड शेड्यूल अवेलेबल है हमारे पास उसका प्लानिंग और कंट्रोलिंग करेंगे कि जो प्रोजेक्ट बने, जो डेवलप करने के लिए आया है, उस वो विद इन द बजट एंड विद इन द शेड्यूल वो डेवलप होके कंप्लीट हो। तीसरा, परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ टीम मेंबर्स जिनको हमने पिछले स्टेप में टास्क दिया है वो एक्चुअल में अपना टास्क एग्जीक्यूशन करेंगे। टास्क एग्जीक्यूशन करते दरमियान प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होगा? वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉट एवर दे आर डूइंग अ प्रॉपर और नॉट, राइट। उसको चेक करेंगे कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, राइट। अगर ठीक होगा तो ठीक, नहीं होगा तो गाइड करेंगे कि ये प्रोसेस को इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप, क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, राइट। इसमें क्या करेंगे? जो भी टास्क दिया गया है वो सबमिट कराएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। सबमिट कराने के बाद वो चेक करेगा। चेक करने के बाद हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट प्रॉपर होगा, एरर फ्री होगा, सभी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल हो रही होगी, तभी वहां साइन आउट होगा, साइन ऑफ होगा। साइन ऑफ मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर connected with the project, they have signed the document and that sign notified that the project is closed, right। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम के लिए हो हमारे पास,
तो हम इसमें ये 4 स्टेप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ बुक में भी अवेलेबल है, ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेना, राइट। ये हैंड्स ऑफ मीन्स मैंने जो साइन आउट का जो पार्ट बोला कि साइन आउट करेंगे, लास्ट स्टेप ये है इसमें, राइट। ओके, तो ये हमारा पहला भाग था, राइट, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने बात की किस बारे में, कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट अवेलेबल हो तो मान लीजिए कि ऑन द सेम टाइम वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट इन इट, राइट। अगर एक टाइम पे हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट अवेलेबल हो तो हम कैसे उसका एग्जीक्यूशन करेंगे और किस किस टाइप की हमें प्रॉब्लम फेस होगी उसमें। तो यहां हमने वो प्रॉब्लम मेंशन की हुई, राइट, कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑन अ सेम टाइम अवेलेबल हो तो किस टाइप की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स रेज होती है। तो सबसे पहले देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल व्हेन द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड, कॉस्ट आर लो एंड फ्यू टीम मेंबर्स आर असाइन टू प्रोजेक्ट। जैसे मैंने पहले भी बोला बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर यहां हमारे पास टीम मेंबर बहुत कम होते हैं, एज वेल एज हमारा कॉस्ट जो एक्सपेंसेस है वो भी स्टार्टिंग के अंदर कम होंगे। सेकेंड स्टेप अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमारे कॉस्ट में भी इंक्रीज आएगा, एज वेल एज हमारे स्टाफ मेंबर में भी इंक्रीमेंट आएगा। देखिए एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस द कॉस्ट एंड स्टाफिंग इंक्रीज, राइट। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा इंक्रीज होगा, राइट, वैसे वैसे हमारे कॉस्ट भी बढ़ेंगे, एज वेल एज हमारे स्टाफ के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा, मीन्स के टीम मेंबर्स ज्यादा ज्वाइन होंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप, the potential that the project will come to the successful ending is lowest at the beginning। जैसे मैंने पहले स्टेप में बोला था कि रिस्क होता है क्या बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या नहीं, राइट। जब हम बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं, स्टार्टिंग फेज में होते हैं, तब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या नहीं उसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है, राइट, सॉरी, राइट। और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, काम करना चालू करेंगे, राइट, वैसे वैसे वो रिस्क कम होता जाएगा, राइट, क्योंकि हमें पता चलेगा कि प्रोजेक्ट का ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है, ये प्रोसेस इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो कम होता जाएगा, राइट। ओके, जो ये वो बात यहाँ लिखी हुई, रिस्क द इज द हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ग्रेजुअली डिक्रीज द क्लोजर द प्रोजेक्ट कम्स टू द कंप्लीशन, राइट। कि रिस्क इज हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, रिस्क हाई होता है बिगिनिंग के स्टार्ट अरे प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के अंदर, मगर वो डिक्रीज कब होगा जब प्रोजेक्ट क्लोजर की ओर मूव करेगा, मीन्स कि जैसे जैसे हम उसमें काम करेंगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ेगा, राइट। और लास्ट पॉइंट जो हमको ज्यादा समझना होगा वो है स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट, राइट। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे बिगिनिंग फेज के अंदर है, उस समय पे जितने भी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है उनका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मीन्स वो अपनी रिक्वायरमेंटें चेंज करेंगे, वो अपना व्यूज चेंज करेंगे, उसको हम इन्फ्लुएंस करेंगे, इंटरप्ट करेंगे वर्क करने के अंदर, राइट। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये रिस्क वो ज्यादा होगा, स्टेक होल्डर जो इन्फ्लुएंस करेंगे वो सबसे ज्यादा करेंगे कब, बिगिनिंग में रिक्वायरमेंटें चेंज करेंगे, अपनी आइडियाज चेंज करेंगे, राइट। तो ये ज्यादा कब होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बट लेटर ऑन जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर जाएगा तब स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट इतना होगा नहीं, तब स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, राइट। तो हमें ये 5 स्टेप ध्यान में रखने होंगे, किसके लिए, जब हम मल्टीपल फेजेस में प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करते हो, राइट। मल्टीपल फेजेस में हम प्रोजेक्ट का डेवलप करेंगे तो कब किस फेज में क्या दिक्कतें होगी, क्या प्रॉब्लम रेज होगी, किस लेवल पे, राइट। तो मोस्टली बिगिनिंग में ज्यादा रिस्क होगा एंड जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आए तब वो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, ये हम इसमें मैन्युअली याद रखेंगे, राइट। तो आज का पहला टॉपिक, राइट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट, इजी था, राइट।
ये एक्सटर्नल एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन जो आज आज हम देखेंगे, मगर ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के लिए, राइट। और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ग्रुप, राइट। अगर ये ग्रुप में हमको पता नहीं चलेगा, ये 4 ग्रुप है, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, राइट। ये 4 इंडिविजुअल ग्रुप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अगर हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पूरा चैप्टर 2 हमारे लिए वेस्ट होगा, राइट। तो थोड़ी ज्यादा हम इसमें ध्यान लेंगे, राइट। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के लिए, जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। अब सबसे पहले हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो है प्रोसेस ग्रुप, मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ग्रुप? प्रोसेस ग्रुप मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस, राइट। जो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस है, उन प्रोसेसेस को हम अगर कंबाइन करें तो उसको हम वन प्रोसेस ग्रुप की ओर से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए, व्हाट इज प्रोसेस ग्रुप? प्रोसेस ग्रुप इज द सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस। जितनी भी प्रोसेस सेम हो, सिमिलर काइंड ऑफ हो, राइट, उन सारी प्रोसेसेस का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो उसको हम प्रोसेस ग्रुप की ओर से समझ सकते हैं, राइट। तो वैसे हम 5 प्रोसेस ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। तो ये पांचों 5 प्रोसेस ग्रुप हो गए क्या? इनिशिएटिंग मीन्स जितनी भी प्रोसेस इनिशिएटिव पार्ट में होगी उस सब का कॉम्बिनेशन इनिशिएटिंग के अंदर होगा, राइट। फिर से एक बार, प्रोसेस ग्रुप मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस। सेकेंड चैप्टर जब आप शुरू करेंगे तब मैं फिर से ये नहीं लूंगा, राइट, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पार्ट के अंदर ही है, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रोसेस ग्रुप मीन्स व्हाट, all the processes which are similar kind of, the group of all of them is called as process group, right। सभी जो एक तरीके की जो भी प्रोसेसेस है उसका अगर हम ग्रुप डेवलप करें तो उसको हम प्रोसेस ग्रुप कहेंगे। तो वैसे 5 प्रोसेस ग्रुप के अंदर डिवाइडेशन होता है: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। अगर हम ये पांचों के पांचों प्रोसेस ग्रुप उसके नाम की ओर से अगर समझे तो भी बहुत इजी है, पांचों ग्रुप, राइट। इनिशिएटिंग मीन्स बिगिनिंग, हम इनिशिएटिंग को बिगिनिंग की ओर समझ सकते हैं। तो बिगिनिंग में क्या होगा? तो जितनी भी प्रोसेस जो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करती है, जितनी भी प्रोसेस जो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करती है, जितनी भी प्रोसेस जो शेड्यूल डेवलप करती है, उन सभी प्रोसेस को हम इनिशिएटिंग ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। स्टार्टिंग फेज के अंदर जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होगी उस सारी प्रोसेस को हम इनिशिएटिंग प्रोसेस के अंदर ऐड करेंगे। मींस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, राइट, वो एक इनिशिएटिंग है। एनालिसिस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, राइट, ये सारी प्रोसेसेस क्या है? इनिशिएटिंग ग्रुप की मेंबर, राइट। सेकेंड वन, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स अगर हमें आगे की प्रोसेसेस याद है, बिगिनिंग, प्रोजेक्ट, टास्क डिवाइडेशन, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग, जो वो 4 स्टेप याद होंगे तो ये पांचों 5 ग्रुप भी याद रहेंगे। इनिशिएटिंग में हम क्या करेंगे? जो भी प्रोसेस हम आइडेंटिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट के लिए वो सारी प्रोसेस हम इनिशिएटिंग में डालेंगे। सेकेंड वन, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स जो भी शेड्यूल और कॉस्ट का प्लानिंग हम डेवलप करेंगे, जो भी रिस्क हैंडल करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, राइट। जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसको हम बाहर से लाने का जो प्लानिंग करेंगे, ये सारी जितनी भी प्लानिंग वाली प्रोसेसेस है वो हम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक आध दो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप की प्रोसेस का एग्जांपल ले, तो प्लानिंग मीन्स टू डेवलप अ शेड्यूल, प्लानिंग मीन्स टू मैनेज कॉस्ट, प्लानिंग मीन्स टू डिवाइड अ टीम, राइट। ये 3 हमने एग्जांपल लिए क्या? प्लानिंग ग्रुप के, राइट। तो ये सभी ऐसी जितनी भी प्रोसेसेस है उन सभी प्रोसेसेस को हम किस में डालेंगे? प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर। थर्ड वन, एग्जीक्यूटिंग।
एग्जीक्यूटिंग मीन्स व्हाट, जो भी हम टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, मीन्स टू प्रोकर समथिंग, प्रोकर मीन्स बाय, बाय वी कैन से प्रोकर मीन्स बाय, राइट, हम खरीदते हैं उसको हम प्रोकरमेंट कहते हैं। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट, वो क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग। हम किसी एक्सपर्ट को बाहर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करते हैं, हायर करते हैं, वो क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग, हमें बाहर से लाया, वो एक एग्जीक्यूटिंग हुआ। कोई प्रोसेस, कोई टास्क हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, राइट। तो ये सब जो प्रोसेसेस है उसको हम एग्जीक्यूटिंग ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन ग्रुप इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके, इसमें हम कौन सी प्रोसेस ग्रुप को ऐड करेंगे, वॉट एवर शेड्यूल हैज बीन गिवन, राइट, जो भी शेड्यूल में हम काम कर रहे हैं वैसा काम हो रहा है या नहीं, ये प्रोसेस जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जो बजट हमने दिया है उस बजट के अंदर काम हो रहा है या नहीं, ये बात भी हम किसमें ऐड करेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। जितना रॉ मटेरियल हम बाहर से परचेज करके ला रहे हैं वो रॉ मटेरियल यूज्ड प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ये टास्क, ये प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ग्रुप की है, ठीक। तो दिस मच प्रोसेसेस विच आर सिमिलर काइंड ऑफ, दोस आर एडेड इनटू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ग्रुप। लास्ट वन ग्रुप इज क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या आएगा, प्रोजेक्ट फाइनलाइज्ड, टेस्टेड सक्सेसफुली, राइट, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया सक्सेसफुली, ऑल डॉक्यूमेंटेशन आर कंप्लीट क्रिएटेड, राइट, सभी डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट कराने हो वो प्रॉपरली क्रिएट हो गए, राइट। तो ये सभी प्रोसेस, ओके, साइन आउट, जो मैंने साइन की बात की थी, साइन ऑफ वाली प्रोसेस, वो प्रोसेस भी यहाँ क्लोजिंग ग्रुप के अंदर ऐड होगी, राइट। तो यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ समझना क्या है इस सभी प्रोसेस ग्रुप के अंदर। पहला प्रोसेस ग्रुप मीन्स व्हाट, तो प्रोसेस ग्रुप मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ, अरे सॉरी, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस, राइट, जितनी भी प्रोसेस सिमिलर काइंड ऑफ हो उनका, उनको हम कंबाइन करें, उनका एक ग्रुप डेवलप करें, उनको हम प्रोसेस ग्रुप बोलेंगे। कितने हैं, 5, इनिशिएटिंग, सभी स्टार्टिंग वाली प्रोसेस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड ऑल, प्लानिंग, सभी प्लानिंग वाली प्रोसेस, शेड्यूल का प्लान करना, कॉस्ट का प्लानिंग करना, टीम का डिवाइडिंग करना, टीम डेवलप करना, वो सब प्लानिंग वाली। एग्जीक्यूटिंग, टास्क बाइफरगेट करना, राइट, वो भी एक एग्जैक्ट का एक एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप होगा, टास्क बाइफरगेशन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, task has been done in given time and cost, that also we can say monitoring and controlling. Task has been uh, done properly or not, that's also monitoring and controlling. And finally closing out the project means sign out, right, documentation submission, tested successfully, project completion, these are all closing project, closing process group members, right। तो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का, राइट। तो इसके साथ हम चैप्टर नंबर 1 यहाँ फिनिश करते हैं, राइट।